हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे ग्रॉस एनाटॉमी का बेसिक एनाटॉमी। ठीक है। ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज बेस्ड ऑन एशियंट ग्रीक और लैटिन प्रोवाइड स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर वर्ल्ड वाइड। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। Branches of anatomy is gross anatomy, microscopic anatomy that is histology, and surface anatomy. Systemic versus regional anatomy. Systemic study of anatomy by system, रीजनल स्टडी ऑफ एनाटॉमी बाय रीजन्स। इसका मतलब ये है जैसे कि सिस्टम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो उस सिस्टम की एनाटॉमी जो हम स्टडी करते हैं उसे सिस्टेमिक एनाटॉमी बोलते हैं। और रीजनल एनाटॉमी जैसे कि थोरेसिक रीजन है, तो थोरेसिक रीजन में हार्ट है, लंग्स है, ठीक है। तो ऐसे रीजन की जब एनाटॉमी हम देखते हैं उसे रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं। मोस्ट स्टूडेंट यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनल एंड सिस्टेमिक एनाटॉमी, हाउएवर इन ग्रॉस एनाटॉमी वी फोकस मोर बाय रीजन्स। Part 1, position, orientation and direction. See, the first diagram is ventral position and the first diagram is dorsal position and second diagram is ventral position. The anatomical position. Regional terms, name of specific body areas. Directional terminology. अब हम थोड़ा देखेंगे। देखो, हेड है, नेक है, थोरैक्स है, एब्डोमेन, पेल्विक। ओके, तो थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विक इन तीनों को मिला के बोलते हैं ट्रंक रीजन। हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विक इन सभी को मिला के बोलते हैं एक्सियल रीजन। ओके, और अपर लिम होता है, लोअर लिम होता है, उसको अपेंडिकुलर रीजन बोलते हैं। नाउ ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शनल टर्म्स। फर्स्ट, सुपेरियर, दैट इज cranial. Definition: towards the head end or upper part of structure of the body above. Example: the head is superior to the abdomen. Second, inferior, that is caudal, away from head end or towards the lower part of structure of the body below. The navel is inferior to the chin. Anterior, that is ventral, towards or at the front of the body, in front of. The breastbone is anterior to the spine. Posterior, dorsal, towards or at the back of body, behind. The heart is posterior to the breastbone. Medial, towards or at the midline of body, on the inner surface. The heart is middle to the arm. Lateral, away from midline of the body, on the outside surface. The arm are lateral to the chest. Proximal, closer to the origin of body parts or point of attachment of limb of the body, trunk. The elbow is proximal to the wrist. Distal, further from origin of body part or point of attachment of limb of the body, trunk. The knee is distal to the thick. Superficial, that is external, towards or at the body surface. The skin is superficial to the skeletal muscle. Deep, that is internal, away from the body surface, more internal. The lungs are deep to the skin. Ipsilateral, on the same side. The right hand and right foot are ipsilateral. Contralateral, on opposite side. The right hand and left foot are contralateral. See the anatomical position: stand upright, head face forward, arm by side with palms facing forward, feet flat on the ground, toes forward. Okay. So directional term कौन कौन से है? Superficial, that is cephalic. Inferior, that is caudal. Anterior, that is ventral. Posterior, that is dorsal. Medial, lateral, intermediate, ipsilateral, contralateral, proximal, distal, superficial and deep. Okay. सुपेरियर सेफेलिक, ये देखिए इस डायग्राम में सुपेरियर यानी सेफेलिक दिखाया है, हेड। इन्फेरियर और वेंट्रल, इसमें वेंट्रल और इन्फेरियर नीचे दिखाया है। सुपेरियर एंड इन्फेरियर। सेफेलेल्जिया मतलब एनी पेन दैट ऑकर इन हेड इज कॉल्ड सेफेलेल्जिया। एंटेरियर एंड पोस्टेरियर, सी द एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। मिडियल एंड लैटरल, सी द मिडियल एंड लैटरल। Proximal and distal, see the proximal and distal. Ipsilateral and contralateral, see the ipsilateral and contralateral. Superficial and deep, superficial और deep मतलब superficial means on towards the skin, deep यानी कि inside the skin. Plane, section and region. Body plane and section. Coronal और frontal plane, sagittal और medial plane and transverse plane. Coronal और frontal plane मतलब कौन सा है?
रेड कलर में जो दिखा है वो। सजाइटल और मीडियल प्लेन कौन सा है, जो ब्लू कलर में दिखा है वो। और ट्रांसवर्स प्लेन जो ग्रीन कलर में दिखाया है वो। बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शन, ऑब्लिक सेक्शन थ्रू द ट्रंक, सो ऑब्लिक प्लेन इसको बोलते हैं। रीजनल टर्म ये है वेंट्रल, ये है डॉर्सल रीजन। प्लेन्स ऑफ द बॉडी, sagittal plane divide body into left and right side, see like this, it is sagittal plane. Mid sagittal plane equal left and right side. Parasagittal plane, two sides are not equally cut. Transverse planes divide the body into top and bottom, see like this. Coronal or frontal plane divide body in a front and back, anterior and posterior. Coronal. Oblique plane cut at an any angle, C. Parasagittal, mid-sagittal, transverse and oblique plane. Cavity and membrane, body cavity and membrane. एक्चुअली मुझे आपको एक डायग्राम दिखाना है, वो पहले मैं दिखाता हूँ। सी बॉडी कैविटीज में कौन कौन से होते हैं, तो वेंट्रल कैविटी एंड डॉर्सल कैविटी। वेंट्रल कैविटी इज डिवाइड इनटू थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी डिवाइड इनटू पेल्विक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। डॉर्सल कैविटी डिवाइड इनटू क्रैनियल कैविटी एंड वर्टिब्रल कैविटी। वर्टिब्रल कैविटी कंटेन स्पाइनल कॉर्ड, क्रैनियल कैविटी कंटेन ब्रेन, पेल्विक कैविटी कंटेन लोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एब्डोमिनल कैविटी कंटेन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, thoracic cavity contain heart and lung, as like this, okay. Abdominal region and quadrants, see there are 9 quadrants of abdominal region. These are right hypochondric region, right lumbar region, right iliac region, okay. Left hypochondric region, left lumbar region, left iliac region, और जो बीच है उसको epigastric region, एम्बेलिकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है जो राइट और लेफ्ट साइड में, इसको हम बोल सकते हैं हकलुया। तो हकलुया ये जो ट्रिक है ये आप याद रखो। हकलुया बोले तो हकलू हाइपोकॉन्ड्रिक, लू लुम्बार या इलियाक, इस तरह से। और ये जो सबसे बीच का है एम्बेलिकल, उसमें क्या है, हमारी जो बेम्बी है वो है, तो उसको एम्बेलिकल बोला है। जो ऊपर है तो इपी बोले तो ऊपर, और गैस्ट्रिक बोले तो पेट, तो इपी गैस्ट्रिक बोले तो ऊपर का पेट, और हाइपोगैस्ट्रिक बोले तो नीचे, तो इस वजह से हाइपोगैस्ट्रिक मतलब नीचे का पेट। एक्चुअली इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं वो हम थोड़ा डीप में लास्ट में देखेंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी उसके पार्ट है, अपर राइट क्वाड्रेंट, लोअर राइट क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट एंड लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। एब्डोमिनल सेक्शन इस तरह से। ये एनाटॉमिक टर्म ऑफ मूवमेंट्स, lateral flexion, movement of trunk or the head in coronal plane, that's the lateral flexion. Abduction and adduction, abduction movement of limb away from the midline of body, adduction movement of limb towards the body. In the hand, abduction and adduction of fingers are movement away from and towards the middle finger, मतलब मिडल फिंगर को एज ए एक्सिस लिया जाता है। इन द फुट, एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ फिंगर्स आर मूवमेंट अवे फ्रॉम एंड टॉवर्ड्स द सेकंड टो, मतलब सेकंड टो जो होता है पैर का, उसको एज ए एक्सिस लिया जाता है। टर्म्स ऑफ मूवमेंट, जॉइंट्स, द साइट वेयर 2 or more bones meet, movement in the sagittal plane. Now flexion and extension. First flexion, usually approximating 2 anterior surface together, but sometimes 2 posterior surface as in knee joint, इसको flexion बोलते हैं, ठीक है। And extension, straightening the joint and usually takes place in posterior direction. Okay, see the first white chart, first diagram is flexion, second is extension. In second white chart, first diagram is flexion of legs and second diagram is extension of leg.
एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एट विस्ट फिंगर, फ्लेक्जन एट विस्ट फिंगर। इसे मतलब फर्स्ट डायग्राम में जो दिखाया वो हमारा जो हैंड है उसकी मूवमेंट एक्सटेंशन और फ्लेक्जन दिखाई गई है। अब ये इंपॉर्टेंट है, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। सुपाइनेशन मतलब पल्म अप, दैट इज फॉरवर्ड, एंड प्रोनेशन मतलब पल्म डाउन, दैट इज बैकवर्ड। हाँ, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं। जो मैंने बताया था, ये जो 9 पार्ट्स होते हैं हमारे एब्डोमिनल रीजन के, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी हकलुया। ओके, मतलब हकलुया मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, मतलब हकलू, लू मतलब तो लुम्बार, और राइट इलियाक बोले तो या। ठीक है, इस तरह से हम याद है। इपिगैस्ट्रिक, एम्बिलिकल रीजन एंड हाइपोगैस्ट्रिक। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं वो हम थोड़े डिटेल में देखेंगे इन दो डायग्राम की मदद से। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, उसमें क्या है, लीवर है, देखो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है, राइट किडनी है, राइट किडनी होती है वहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा भाग यहाँ पे आता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में। ठीक है, अब सेकंड इपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या आता है, तो स्टमक आता है। ठीक है, स्टमक, लीवर आता है, लीवर है, पैनक्रिया आता है। ठीक है, पैनक्रिया का थोड़ा भाग है, डिओडेनम है, देखो डिओडेनम है, डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्प्लीन है, स्प्लीन अब यहाँ पे दिखाई नहीं गई, पर स्प्लीन भी वहाँ पे होती है इपिगैस्ट्रिक रीजन में। एडर्नल ग्लैंड होती है, जो किडनी के ऊपर होती है ना, एडर्नल ग्लैंड, वो भी इपिगैस्ट्रिक रीजन में आती है। नाउ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, उसमें क्या है, स्प्लीन, स्प्लीन है, कोलॉन, कोलॉन क्या है, तो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स कोलॉन है उसका कुछ हिस्सा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में आता है। ठीक है, कोलॉन, लेफ्ट किडनी एंड पैनक्रिया, लेफ्ट किडनी भी आती है और पैनक्रिया भी आता है। नाउ राइट लुम्बार में देखो गॉल ब्लैडर आता है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, लीवर का कुछ हिस्सा है, राइट कोलॉन, राइट कोलॉन बोले तो असेंडिंग कोलॉन, तो असेंडिंग कोलॉन भी उसी रीजन में आता है। नाउ एम्बेलिकल रीजन, उसमें क्या है, एम्बेलिकस है, दैट इज नेवल, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट है, और डिओडेनम है, डिओडेनम इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी वहाँ पे। लेफ्ट लुम्बार में क्या है, डिसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन है, एंड लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी का कुछ हिस्सा है। अब राइट इलियाक में देखो, राइट इलियाक में क्या है, अपेंडिक्स है और सिसम है। ठीक है, अपेंडिक्स है और सिसम है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, सिग्मोइड कोलॉन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है, अब जो इस डायग्राम में नहीं दिखाया, सिग्मोइड कोलॉन दिखाई जाए और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी वहीं पे होते हैं। लेफ्ट इलियाक में क्या है, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन। ठीक है, वो कहाँ पे होता है, लेफ्ट इलियाक रीजन में। तो इस तरह से ये सब ऑर्गन हम आसानी से देख सकते हैं। और अब हाथ मतलब एब्डोमिनल रीजन में अगर कोई पेशेंट आ गया, उसने कहाँ पे हाथ लगा है, उस हिसाब से हमें उसे क्या हो गया है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब ये इस चार्ट में दिया गया है कौन कौन से मतलब कौन कौन से डिसीज कौन कौन से रीजन में होते हैं। तो ये अभी इस लेवल पे इतना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आगे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू।